Good morning, beta. As we are with the chapter carbon and compounds, in the previous lecture I have introduced with the new term that is allotrophs. Fine. There are different allotrophs of carbon. Now I am going to explain each and every allotrope separately. The first allotroph is our diamond. Look here on the notes on page number 7. Fine. What is the diamond representation? Look, beta. In the case of diamond, we are having tetrahedral arrangement of carbon atoms. This is the tetra. Tetra I have introduced, I have told you so many times. What is tetra? Tetra means 4. Fine. There is a thing here. This is the bond present here and the bond length. Bond length is approximately 154 picometers. PM means picometers. And the bond angle. Bond angle means the angle with which the two bonds are separated from each other is 109 degree 28 minutes. What do you mean by minutes? 60 minutes is equal to 1 degree. Fine. That means approximately half degree is present here, and which is included in this bond angle. Now let us continue with the properties of diamond. Diamond, it is the hardest substance present in the universe. सबसे ज़्यादा hard है. Fine. Even though it is made up of carbon, it is the hardest one. 3-dimensional network structure is there. That means the representation is like this. 3-dimensional means कि जिसमें आपका ये फोर्थ वाला जो है ना ये बैक में होता है and that can be seen from the front. आप कब आगे से देख सकते हो उसको और the 3 carbons can be visible from the front and this one is at the back. Like here, it is at the back of this particular carbon. Carbon atom and diamonds are closely packed. They are closely packed. क्लोजली पैक्ड का मतलब बहुत पास पास हैं सारे. This all are very close to each other, and that's why when the particles or the molecules of any substance are very close to each other, the density increases. The same thing is here. The density is in the case of diamond is the highest. Melting point of diamond is quite high. अब पहले भी बता चुकी हूँ बेटा, melting point, boiling point किस पे डिपेंड करती है? The bond present there. अगर bond strong होगा तो उसको तोड़ने के लिए to break that particular bond we require high temperature or high heat is very much heat is provided to it, and that's why the melting point increases. Melting point means breaking down of the bond, and if the bond is strong it requires more heat and that's why it is high. बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब कोई भी चीज आपने 10th में केमिस्ट्री फिजिक्स के चैप्टर में भी पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है? दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो ही वो फ्लो करता है. द सेम थिंग इज है. बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स यहाँ पर कोई भी फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है. बेटा फ्री कहाँ से प्रेजेंट होंगे? एक कार्बन है, उसकी टेंडेंसी है 4 बॉन्ड फॉर्म करने की, तो ऑल द 4 आर प्रेजेंट देयर and the strong bond is there जो easily टूट भी नहीं सकता. तो how can the free ions present there? That's why it is bad conductor of electricity. Diamond is a transparent substance. Transparent substance है. All have seen the diamond जो हमारा हीरा होता है, ज्वेलरी बनाने के काम आता है. High refractive index होता है इसका. High refractive index, आपने refractive index उसमें पढ़ा है फिजिक्स में. फाइन. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है. डायमंड कैन रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव लाइट, और वो रिफ्लेक्ट भी कर सकता है और रिफ्रैक्ट भी कर सकता है. लाइट के चैप्टर में है बेटा रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक. रिफ्रैक्शन मीन्स पासिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. रिफ्रैक्शन होता है पासिंग. दैट मीन्स डायमंड कैन फॉलो बोथ द थिंग्स, रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन. अब हमारे पास नेक्स्ट हमारा एलोट्रॉफ आता है डायमंड. अब देखो जैसा इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इट इज हैविंग हेक्सागोनल रिंग्स. हेक्सागोनल मीन्स देखो 6 कार्बन से अटैच किया हुआ हमारा इस तरह से रिंग रिप्रेजेंटेशन होता है. फाइन. ईच कार्बन इज अटैच्ड विद स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स. ऑल आर कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है, और उन कोवेलेंट बॉन्ड्स की हमारे पास लेयर होती है. वन लेयर इज हेयर, वन इज हेयर, वन इज एट अ डिस्टेंस, एंड द लेयर्स आर लिंक्ड विद ईच अदर विद अ वीक वंडरवॉल फोर्स. वीक वंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट होता है इनके बीच में, इसीलिए वीक है, इसीलिए मैंने इसको डॉटेड रिप्रेजेंटेशन दी है. फाइन. दैट्स वाई अब उसके वीक वंडरवॉल फोर्स होने की वजह से वो बहुत जल्दी टूट जाता है, तो उसकी हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है. फाइन. नेक्स्ट कम है सॉफ्ट सब्सटेंस ड्यू टू वीक वंडरवॉल
फोर्सेस। सॉफ्ट सब्सटेंस होती है, बहुत सॉफ्ट है। अब ग्रेफाइट में आप अगर जर्नल एग्जांपल लेते हो डेली यूज का, तो ग्रेफाइट कहाँ यूज होता है? ग्रेफाइट इज यूज इन अ पेंसिल लिड, पेंसिल लिड में यूज किया जाता है। फाइन, अगर इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है तो यू कैन स्टडी द प्रॉपर्टीज है। हम क्या करें इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए? वी विल पील दिस पेंसिल फ्रॉम अनदर साइड, यू विल फाइंड अ lead from this side also. When I will connect it with the wires and a battery, the bulb will start glowing. What does it shows? It shows that graphite is a good conductor of electricity. फाइन, और क्यों है वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का? जब ये वीक वंडरफॉल फोर्स बीच में से टूट जाएगा तो हमारा ये वाला जो कार्बन है उसके पास 1, 2 और एक इसके पीछे है, ठीक है, 3 रह जाएंगे। एंड द फोर्थ वन विच वर अटैच्ड लाइक दिस टू अटैच द 2 रिंग्स, 2 लेयर्स, वो टूट जाएगा। तो हमारे पास एक कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और मैंने टेस्ट बता दिया है, आप पेंसिल को यहां से भी पील करो, यहां से आपका फिर लीड निकल जाएगी। उस लीड को आप जब बैटरी से कनेक्ट करोगे तो आपका बल्ब ग्लो करेगा। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल हाउ टू शो इट। नेक्स्ट है, इट हैज लो डेंसिटी ड्यू टू वाइड स्पेस बिटवीन द 2 लेयर्स। अब ये देखो, लेयर्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस, खाली स्पेस होने की वजह से वो एक लो डेंसिटी कंटेनिंग एलोट्रॉफ भी है। फाइन, नाउ द लास्ट वन इज विच इज नॉट यूज्ड ऑन ए रैपिड रेट, हमारे ज्यादा यूज भी नहीं किया जाता और न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज फुलरेंस। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय बक मिस्टर फुलरेंस। इट कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 60 to 350 कार्बन एटम्स अटैच टू ईच अदर। ये बॉल, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारी फुटबॉल होती है, उसके अंदर 2 तरह से रिंग्स होती हैं। कुछ होती हैं पेंटागन, दैट मीन्स 5 रिंग्स अटैच कार्बन होती हैं। कुछ होती हैं हेक्सागोनल, दैट मीन्स 6 की रिंग्स होती हैं। तो उस अपीयरेंस में हमारी फुलरेंस एलोट्रॉफ प्रेजेंट होता है। फाइन, ना तो ये सॉफ्ट होता ना ही ये हार्ड होता, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड प्रेजेंट होता है, सॉलिड स्टेट में अवेलेबल होता है। बेटा, नाउ वी हैव स्टडीड ऑल द एलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन। 3 एलोट्रॉफ्स आर दैट। एलोट्रॉफ्स मैंने बताया था, दीज आर सिंपली द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। अब अगर इनको अगर देखा जाए, व्हाट वुड बी फॉर्म, अगर आप इन तीनों को बर्न करोगे, डायमंड को, ग्रेफाइट को और फर्नेस को, क्या मिलेगा आपको बर्न करने पर? कंबशन प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा। Fine, that means chemically all are same, but physical their structures are totally different from each other. Thank you for today, beta.